सो अभी टॉपिक है ऑब्जेक्ट्स क्लास. In Java, there is a special class in java.lang package known as object class. Object class is parent class of all classes in Java. Each and every class की parent class है. Every class in Java is either directly or indirectly inherits the class object. मतलब हर ऑब्जेक्ट हर क्लास जावा में डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली ऑब्जेक्ट क्लास को इनहेरिट करती ही करती है. जावा ऑटोमेटिकली इनहेरिट्स दिस इनटू प्रोग्रामर्स क्रिएटेड क्लासेस. Finalize is one of the methods from object class. On the object class, its body is left blank. Java strongly recommends to use finalize when we want to do something on destruction of some object. Here we override the finalize method of object class. We will read overriding a few moments later. We have to keep the access modifier of the finalize as protected, because in order to override the finalize method of the parent class object, we have to keep the prototype same as object class. मतलब हम ओवरराइडिंग करते हैं तो उसमें हमें प्रोटोटाइप सेम रखना पड़ता है मेथड्स का, तो वही कर रहे हैं. हमें फाइनलाइज का एक्सेस स्पेसिफायर प्रोटेक्टेड इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि उसका प्रोटोटाइप वैसा ही वहाँ पे भी है. Java forces this class into our classes because Java feels that few important functions should always be found in any class that is created in Java. मतलब कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शन हमेशा ही होने चाहिए हमारे क्लासेस में, जो कि जावा चाहती है. जैसे कि फाइनलाइज हो गया तो हमें उसे पूरा क्रिएट करना पड़ेगा, उसे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा. इससे अच्छा जावा हमें प्रोवाइड कर रही है. ऐसी छोटी चीज़ें जावा ने ध्यान रखी है. Sweet. Defining static methods is the next topic. अब defining static data members तो हो गया था, अब आ गई static methods की बारी. तो static methods क्या होते हैं? मतलब डेटा तो ठीक है कि static लिख दिया, हो गया डेटा static, सब ऑब्जेक्ट्स के लिए हो गया. तो static method की बात करते हैं. If in your class you have a class which is only accessing the static data members of a class. अरे तो गलत लिख दिया. If in your class you have a method which is accessing only static data members, the Java strongly recommends that you should declare the method as static. सिंपल है कि अगर कोई मेथड क्लास के सिर्फ स्टैटिक डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर रही है तो आप उस क्लास को भी स्टैटिक डिक्लेयर कर दो. जावा स्ट्रांगली रेकमेंड करती है. द बेनिफिट ऑफ विच वी विल बी एबल टू कॉल दैट मेथड विदाउट क्रिएटिंग एनी ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास. मतलब हम स्टैटिक पढ़ते हैं तो हमें याद हमेशा ही होना चाहिए कि स्टैटिक मतलब जो स्टैटिक मेथड्स होती हैं या स्टैटिक मेंबर्स होते हैं उन्हें हमेशा क्लास के नाम से ही कॉल किया जाता है. ऑब्जेक्ट के नाम से भी कर सकते हैं बट रेकमेंडेड सिंटैक्स नहीं है. क्लास के नाम से किया जाना चाहिए हमेशा. One important thing to remember is that if you declare a method as static, then you can't access non-static data members of class inside the static method. Obviously अगर कोई static non-static data member है अगर हमारी class method के अंदर, तो हम फिर उस method को static declare नहीं कर सकते, and vice versa. vice versa नहीं, मतलब ये है, इसका opposite मत सोचना. That's even applicable with main and mains classes. Yeah, surely I don't get it, but yeah, we really need to access non-static data of class inside static method. Then we will have to create an object of class inside that static method in order to do so. Wow,
मतलब अगर हमें स्टैटिक मेथड के अंदर नॉन स्टैटिक डेटा की ज़रूरत पड़ ही रही है और हम उसको नॉन स्टैटिक डिक्लेयर भी नहीं कर सकते उस मेथड को, तो फिर क्या करेंगे हम कि उस क्लास का ही एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे स्टैटिक मेथड के अंदर और फिर मज़ा ही आ जाएगा। तो ये हो गई स्टैटिक मेथड्स। कोई इसमें नई बात नहीं हो गई है वैसे सिंपल चीज़ है। जैसे कि हमारी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, तो मेन क्लास भी हमारी स्टैटिक ही है। स्टैटिक ब्लॉक की बात करते हैं हम। नेक्स्ट चीज़ है स्टैटिक ब्लॉक। सो इफ वी वांट a piece of code to run once and only once and automatically, then we have something known as static block. If it runs when we first make use of our class in which this block it run when we first make use of the class in which this block is there. मतलब जब क्लास का फर्स्ट यूज़ करते हैं हम प्रोग्राम में तो ये ब्लॉक रन हो जाता है। बाय फर्स्ट यूज़ ऑफ क्लास मीन्स मेक फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास और स्टैटिक मेथड एक्सेस ऑफ द क्लास। मतलब या तो किसी क्लास के स्टैटिक मेथड एक्सेस कर लो या फिर किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बना लो। तो ये पहला यूज़ जैसे ही होगा स्टैटिक ब्लॉक रन हो जाएगा। The static block run just before the first use. The static block जैसे ही हमने फर्स्ट चीज़ रन करी, जैसे कि पहला ऑब्जेक्ट बनाया क्लास का, तो उसके जस्ट पहले स्टैटिक ब्लॉक रन होगा, फिर वो फर्स्ट चीज़ रन होगी, फर्स्ट ऑब्जेक्ट बनेगा। बिफोर एनी कंस्ट्रक्टर और मेथड रन्स, दिस रन्स फर्स्ट थिंग इन क्लास, बट just before we call something from the class. So there is that. Now let's talk about this. This means what? This is this एक चीज़ है। This is a special object reference automatically created by Java when we call non-static method. वाओ, दिस एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस है जो कि जावा हमेशा अपने आप बना लेता है, अपने आप, व्हेन वी कॉल अ नॉन स्टैटिक मेथड। दिस रेफरेंस स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द कॉलिंग ऑब्जेक्ट इन इट व्हेनेवर वी कॉल एनी नॉन स्टैटिक मेथड। मतलब this reference stores the address of the calling object in it। मतलब जो ऑब्जेक्ट दिस को कॉल कर रहा है, जिस नॉन स्टैटिक मेथड कॉल हो रही है, तो किसी ऑब्जेक्ट से ही कॉल होगी। तो ऑब्जेक्ट से कॉल हुई तो हम उस ऑब्जेक्ट का जो एड्रेस होगा वो दिस में चला जाएगा। दिस में चला गया तो दिस जो है वो रेफरेंस है, वो दिस उस ऑब्जेक्ट को रेफर करने लग जाएगा। अब दिस इज ऑल्सो कीवर्ड इन जावा। When we call non-static method, Java automatically passes the address stored in the reference variable as the argument from method calling, which is received in the method body by a reference known as this. It stores the address of the object while the method body runs. तो हमने कहीं से कुछ एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई में एम्प्लॉई क्लास है हमने बनाई, उसमें 3 आर्गुमेंट पास हो रहे हैं। कंस्ट्रक्टर है, तो कंस्ट्रक्टर में एम्प्लॉई के कंस्ट्रक्टर में EMP है और एज, नेम और डबल सैलरी पास हो रही है। तो हम इनको पास करेंगे जैसे कि एज है 25, नेम है अमित और डबल सैलरी है 25,000। तो ये तीनों पास किए हमने जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट बना के। हाँ, तो दिस विल बी नोन एज दिस।
क्या भैया, मेरा बोला नहीं जा रहा है. इफ़ वी क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर शोन एज above मतलब जैसा मैंने अभी बताया, which we want to initialize the data members of the passing arguments, but we receive the arguments in the parameters named same as data members in the class. Then the parameters of the constructor will shadow the data members of the class, and those will initialize themselves and run to main code area. Okay. Simple as fuck, boy. To deal with the shadowing, when we use the same name, we can use this. मतलब अगर हमने एज, नेम और सेल नाम के डेटा मेंबर्स बनाए मेथड में, तो जावा ये रिकमेंड करती है कि आप जो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स है मेथड के, उनका नाम भी एज, नेम और सेल ही दो. ये तो बहुत कंफ्यूजिंग बात हो जाएगी कि मेथड्स डेटा मेंबर्स के नाम भी वही और आर्ग्यूमेंट्स का नाम भी वही, तो फिर कौन सी चीज़ कौन सी, हम रेफर किसको करेंगे. तो जावा ने इसका सोल्यूशन दिया है दिस क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है जो हमने पास किया है आर्गुमेंट में. अब उस आर्गुमेंट में हमने मतलब उस आर्गुमेंट के वो 3 चीज़ें पास करी है, ठीक है. तो दिस क्या करेगा, उन आर्गुमेंट फॉर्मल आर्गुमेंट्स को रेफ़र करेगा. तो दिस डॉट सेल मतलब वो आर्गुमेंट वाला जो सेल है, और दिस डॉट सेल इक्वल्स टू सेल कर देंगे हम, या फिर सेल इक्वल्स टू दिस डॉट सेल कर देंगे. तो सिर्फ सिंपल सेल जो है वो ऑब्जेक्ट का डेटा मेंबर है, और दिस डॉट सेल है वो आया वाला सेल है आर्गुमेंट में. ओके, सो बहुत बढ़िया चीज़ है. अब कंस्ट्रक्टर चेनिंग क्या होता है. कंस्ट्रक्टर चेनिंग में यूज़ होता है दिस. तो कंस्ट्रक्टर चेनिंग में सिंपल सी बात है कि दिस का यूज़ करके हम कंस्ट्रक्टर चेनिंग कर सकते हैं. देखो दिस तो एक तो ये रेफरेंस को पॉइंट करने वाली बात हो चुकी है, लेकिन दिस से क्या होता है, दिस से अगर किसी कंस्ट्रक्टर में हम दिस करके पैरेंथेसिस में कुछ आर्गुमेंट दे दें तो वो दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकता है मेथड के. तो इस वजह से होती है कंस्ट्रक्टर चेनिंग. ओके, सो नेक्स्ट चीज़ हम पढ़ेंगे इनहेरिटेंस नेक्स्ट लेसन.